Assalamu alaikum. This is the second presentation regarding the topic of mutation. Here we are going to discuss regarding some of the instances and the evidentiary value of a mutation. So, a mutation, as we have already discussed in the previous topic, is the procedure through which periodical records and record of rights are updated. It is basically called intakal, or which has come from the word muntakil. मुंतकिल करना इंतकाल इस ये वही अल्फाज है जो कि नॉर्मली यूज़ हम अपनी डेली लैंग्वेज में करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, here we are just going to talk about the evidentiary value because we have already gone through how mutation is affected and what is the and what is the procedure, and we have discussed it at length before. So here we are going to talk about mutation as its evidentiary value. The decision on a mutation is not a final adjudication on a question of title, as it is just alteration of an entry, hence cannot be refused merely because of the lapse of time. So if, let's say, some person has delayed, for example, he has purchased a land through registered deed, but he has delayed due to some reasons, and he has not managed to go to Patwari within 3 months, as we have discussed in section 42. So what will happen? Will mutation be done or no? You have to understand one thing: mutation is just to keep the land revenue record straight. Mutation does not create some right. If you remember the article 49 of the Kanun Shahadat order, you will understand more about the concept of mutation when it comes to its practicability in the matter of evidence. It is the duty of the revenue officer to go through the entire mutation register. So one thing you need to understand that म्यूटेशन के वक्त ये नहीं सिर्फ होता कि एक शख्स ने खुद ही अपना जो इंटरेस्ट है वो पटवारी को बताना होता है. पटवारी खुद से भी, उसको अगर पता चलता है कि कहीं पे कोई राइट ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो खुद से भी अपनी इनिशिएटिव में भी अपने, क्योंकि ये देखना ये उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ताकि पता चल सके कि रेवेन्यू आगे किसने देना है किसने नहीं देना है, क्योंकि इसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो गवर्नमेंट को होता है कि ताकि उस पास रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहे. तो रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होता है वो टाइम टू टाइम वो खुद भी दौरा करते होते हैं उन स्टेट्स का, और वहाँ पे जाके वो खुद चेक करते होते हैं इस तरह की एंट्रीज. It is the duty of the revenue officer to go through the entire mutation register, detect all pending mutation and take suitable action in every case. So, but normally it does not happen. Normally this is when Patwari, when he presents documents for mutation, mutations are affected. Otherwise, normally we have seen it that revenue officer, they are so much preoccupied by the other things that they do not normally check mutation register, even though they should check it, कि ताकि पता चले ना कि क्यों म्यूटेशन अगर कोई पेंडिंग है तो वो क्यों है. A new register should be opened only when the old register has been used up. नया रजिस्टर जो इंतकालात है उसी वक्त होगा जब पुराना रजिस्टर इंतकालात ख़त्म हो चुका होगा. ये नहीं हो सकता कि पुराना रजिस्टर इंतकालात अभी ख़त्म ना हुआ तो ये नया रजिस्टर खोल ले जो पटवारी है. In entering orders of the court, the Patwari should note in column number 14 of the file and counterfile name of the court, names of parties, abstract of decree and date of decision. क्योंकि याद रख लें, when there is an order of the court, remember one thing, when there is the order of the court, then there is no need of assembly, open assembly, as we have discussed it before. So Patwari will just write down these four things in column number 14 of both file and counterfile, because then revenue officer will just sanction it because that will be the order of the court. Where a mutation of inheritance, sale, gift or mortgage covers a share of the shamilat,
The Shamilat khata should be entered in the mutation so that the mutation of the co-sharers in the Shamilat may be correctly entered into the periodical records. We have discussed this thing before also, that when someone sells Shamilat, or when we say that someone acquires the rights of Shamilat, he will be he will be a kind of ala malik there. Because why? Because he has acquired rights of Shamilat too, and if he does not acquire it, he will be just malik kabza. So अगर म्यूटेशन में स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है कि भाई इन शामिलात भी ट्रांसफ़र होंगी, तभी वो ट्रांसफ़र होंगी, ये बात याद रखनी है। अगर वो लिखा हुआ है कि नहीं होंगे, अगर सिर्फ ये लिखा हो कि लैंड ट्रांसफ़र हो रही है, तो सिर्फ लैंड होगी, कोई शामिलात का खाता अलहदा खुलता है। ये आपको ऐसे मिसाल दे दूँगा, अगर एक शख्स ए है, ए ने एक स्टेट ने प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो ए का जो खाता होगा वो उसकी प्रॉपर्टी का तो बनेगा, लेकिन अगर उसने प्रॉपर्टी के साथ शामिलात में भी उसका राइट है, उसने शामिलात भी खरीदी, तो इस खाते के साथ एक और खाता उसका भी इंदराज होगा, जो कि शामिलात का खाता जिसको कहते हैं। ये शामिलात का खाता फ़ौरन उस खाते के बाद होगा जिसमें उसकी अपनी ऑनरशिप थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये इसको ऐसे करते हैं। When the mutation does not cover a share in the Shamilat, then in column 8 of the mutation sheet, बिला हिस्सा शामिलात और मालक कब्जा इज रिटर्न। बिला हिस्सा शामिलात यानी कि अभी जो बंदा शामिलात नहीं ले रहा, तो उसका ज़ाहिर बात है खाता तो खुलेगा, वो तो वाकई नहीं, वो तो नहीं खुलेगा, लेकिन साथ ये भी नहीं होगा बिला हिस्सा शामिलात। When the mutation refers to a mortgage, it is only necessary to show the mortgage as मुर्तहिन मा हिस्सा शामिलात और मुर्तहिन बिला हिस्सा शामिलात एज द केस भी। तो अगर मॉर्टगेज भी ऐसे हो रही हो, मॉर्टगेज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ ड्यूरिंग मॉर्टगेज शामिलात आर आल्सो ट्रांसफर्ड, देन इट विल बी रिटन मा हिस्सा शामिलात, और इफ शामिलात आर नॉट ट्रांसफर्ड विद मॉर्टगेज, देन मुर्तहिना बिला हिस्सा शामिलात विल बी रिटन। एंड यू शुड, when you are going through these terminologies, you need to understand that if, for example, if it is due to sale, then you need to understand section 54, or if it is through gift, then 122, section 122, and for mortgage you need to understand section 58 of Transfer of Property Act. So Transfer of Property Act plays a vital role. If you being a lawyer, you need to understand that when you are doing practice of Land Revenue Act, Transfer of Property Act, the terminology of Transfer of Property Act should be studied by you. In case of lease, section 107 of Transfer of Property Act has to be considered, whereas in case where oral lease is done, the same has to be proved before revenue officer. आपको अगर section 107 of Transfer of Property Act में अगर आप जाएंगे, तो आपको समझ में आएगी कि इस तरह की लीज़ में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का होना लाजमी होता है। अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो लीज़ ही वैलिड नहीं होगी। अगर लीज़ इटसेल्फ वैलिड नहीं होगी तो इंतकाल कैसे होगा। लेकिन if there are some places where रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट यूज्ड, जहाँ पे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही नहीं होता, तो वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर फिर लेसर और लेसी दोनों के बयानात लेगा, और फिर वो ओपन असेंबली में वही सारी कार्रवाई होगी। ये उस वक्त जब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ ना होता हो, वरना लीज़ के लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट लाजमी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगेन सेक्शन 107, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बिफोर सैंक्शनिंग ऑफ म्यूटेशन, इफ ऑनर डाइज and section 42 sub clause 7 of present act is not complied with, such mutation is void. So for example कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, आप एक शख्स से ओरल सेल हो रही है, या आप सिर्फ वो कह रहे हैं जी कि ओरल एक तबादला हो रहा है, जो भी इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, उसमें कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इनहेरिटेंस का मामला नहीं है, और कोर्ट का कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो उस सूरत में अगर वो शख्स इंटीमेट जाके पटवारी को कर देता है रोज़नामचे में, लेकिन इससे पहले कि वो तहसीलदार के सामने पेश होता, कॉमन असेंबली होती, सब कुछ, तो उससे पहले अगर वो बंदा फोत हो जाता है, फिर म्यूटेशन नहीं होगी। और अगर ऐसी कोई म्यूटेशन हो गई है तो वो काला दम होती है इन द आई ऑफ लॉ, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। Once mutation is sanctioned and it affects
Shajara Nasab, then same be amended accordingly. Shajara Nasab is the genealogical order that is also kept by Patwari. पटवारी उसको अपने पास रखता है शजरा निकालने के लिए। तो ज़ाहिर बात है जब म्यूटेशन होती है तो उसका इफेक्ट शजरे में भी पड़ता ही होगा, पड़ता है। और जब स्पेशली इस तरह के शजरे में पड़ता हो तो फिर वो उसके बाद उस शजरे को अमेंड करेगा। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी रिकॉर्ड, म्यूटेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ periodical records or record of rights. Mutation is just a process. It is once mutation is done, once periodical record is updated, then the updated periodical record will have the presumption of truth. Presumption of truth is not attached with mutation. Mutation is nothing. Mutation is just alteration. It is the upgradation. It is the process. तो खाली परत पटवार या परत पटवार लेके के कोई फिर रहा है और कह रहा है जी कि मैंने जो है वो मेरी ये ज़मीन है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू ये है कि जब उस म्यूटेशन से जमाबंदी में, या जिसको हम रजिस्ट्रेशन हकदारान ज़मीन कहते हैं, उसके अंदर जब चेंजिंग इफेक्ट हो चुकी हो। इन केस ऑफ डिस्प्यूट फॉर म्यूटेशन द प्रोसीजर इन सेक्शन 42 विल बी फॉलोड, दैट विल बी के रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो सब कुछ खुद देखेगा। वो जो देखें, जब आप म्यूटेशन के लिए जब आप जाते हैं तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं तो फॉर श्योर म्यूटेशन तो फिर नहीं होगी। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड नहीं कर सकता कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर, वो सिविल कोर्ट ही करेगी। During the making, revision or preparation of any record or in the course of any inquiry, a dispute arises as to any matter of which an entry is to be made in a record or in the register of mutation, revenue officer may make an inquiry. So this is the power of revenue officer, that he can inquire into any matter that has to be corrected. But again, इस तरह की जब इंक्वायरीज होती है वो बड़ी समरी प्रोसीडिंग्स हैं। डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स नहीं कर सकती, वो सिविल कोर्ट ही करती है, याद रखना है आपने। इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ पोजेशन, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 after hearing all concerned and collecting evidence may decide the matter. So if there are two parties who are claiming that they have possession over the land, so how to decide it? Not less than assistant collector grade 1 will decide it. और सिंध में जो है ये असिस्टेंट जो वो रेवेन्यू ऑफिसर होगा, या जिस तरह भी जो वहाँ पे इसकी जिस तरह हमने हिरार्की में पढ़ा है उस हिसाब से ये all persons who acquire any interest are bound to produce related documents on the order of revenue officer. So this is very plain and simple. The last thing is that all the mine and minerals shall always be deemed to have been the property of government. So if somebody has the land, he says that this is his land, and let's say वहाँ से मिनरल्स निकल आते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर उस शख्स की बेशक उसकी अपनी लैंड हो, उसके नाम पे उसका इस पे नहीं होता। वो जो मिनरल्स निकलेंगे वो हुकूमत के होंगे। ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट्स या क्वेरीज, लोकल एरिया फ्रॉम विच स्टोन इज रेगुलरली रिमूव, ये जिस कानें वगैरह हो जाती हैं जहाँ पे कुछ इस तरह का पहाड़ी सिलसिले होते हैं। एंड वेस्ट लैंड विल बी डीम्ड ऑफ गवर्नमेंट। पर एक चीज़ आपने इसमें ये ध्यान में रखनी है कि एटॉमिक मटेरियल, ऑयल और नेचुरल गैस जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। एटॉमिक मटेरियल, ऑयल और नेचुरल गैस। इसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह हैं उन पर पहला हक जो है वो सूबाई हुकूमतों का होता है। सो गाइज, दिस वॉज द होल डिबेट रिगार्डिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि म्यूटेशन से कोई राइट क्रिएट नहीं होता, ना ही कोई राइट ख़त्म होता है। म्यूटेशन इज़ जस्ट अ प्रोसेस। म्यूटेशन इफेक्ट होने के बाद जब पीरियोडिकल रिकॉर्ड अपडेट होगा तब कोई राइट जो है आप कह सकते हैं कि एक राइट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच होती है, वो भी इस सेंस में। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगेन आपने पहले पढ़ा है, मैंने आपको पहले बताया कि रजिस्टर अक़दारान ज़मीन में या मिसलकियत में बेशक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ है, लेकिन ऑनरशिप को इंडिपेंडेंटली प्रूव करना पड़ता है। क्वेश्चन ऑफ टाइटल अगर ऑनरशिप का क्वेश्चन है तो वो आपने लाजमी खुद से इसको अलहदा से इसको इंडिपेंडेंट ऑफ सच एंट्रीज आपने उसको प्रूव करना है। So if you have any more question, you can ask me. You have the WhatsApp number there. I hope you enjoyed this presentation, and we have in these 2 sessions completed the
whole topic of mutation. Thank you so very much.